नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभयभावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्वतयात्मकं परमवेद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थाः सनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजभक्तं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। उपस्थित आप सभी वैष्णवन को आज के या अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को अब मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? यदि नहीं आ रही है तो मेरे को आप लोग इशारा कर दीजो, तो मैं कुछ जो भी अगर समस्या होगी वो देखेंगे। अच्छा, तो अपन नवरत्न ग्रंथ के पहले श्लोक तक आ चुके हैं के वाक्य प्रारंभ में। तो या के पहले को थोड़ा सा रिवीजन अपन देख ले में अब तक अपन ने जो किया। हाँ सपना बहन बोलो। જન્મ પ્રણામ જીજે. જીજે બે ક્વેરી હતી થોડી. એક તો જીજે પહેલા આપે એકવાર ઓલું લખ્યું હતું કે એક સવાલ કે ભજનનો બધાને અધિકાર છે, પરંતુ સત્વ ગુણનું વ્યવધાન હોય તો જ પ્રભુનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો અધિકાર છે. એવું ગઈ વખતે આપણે આજ્ઞા કરી હતી. આમ તો ભજનનો બધાને અધિકાર છે, પરંતુ સત્વગુણનું વ્યવધાન હોય તો સત્વગુણનું વ્યવધાન થોડું સત્વગુણ આવે તો જ ભક્તિ સંભવે છે. સત્વગુણનું વ્યવધાન થાય તો જ ભક્તિ થઈ શકે છે. કેવલ સત્વગુણ ન હોય તો ભક્તિ જ નહીં, એટલે ઇનિશિયેટ જ નહીં થશે. રાજસ ગુણ તામસ ગુણ હશે ખાલી, સત્વગુણ આવશે જ નહીં, હશે જ નહીં, તો ભક્તિ કરી શકશે. એટલે જેમનામાં સત્વગુણનો વાત તો ભક્તિ બધાને માટે જ છે, પણ બધા કઈ ભક્તિ કરે છે? બધા કઈ ભક્તિ નથી કરતા. એટલે જે કરે છે એ લોકો એટલા માટે કરી શકે છે કે એમનામાં સત્વગુણનું વ્યવધાન થયું. સોરી. એટલે સત્વગુણ એ આવશ્યક છે, એટલે પ્રી કન્ડિશન છે. ઓકે જી જી. હજી એક હતું કે આપણે આમાં પેલા છેલ્લે કીધું હતું કે પ્રભુ બાધક તો કરે છે, પ્રભુ પણ સેવામાં બાધક નથી કરતા, એવું આપણે સમજતા પહેલા છે. પણ બાધક કરે છે પણ ત્યારે પણ એમ લખ્યું છે એમાં આપણે સમજતા છે કે ત્રણ કામ અને ધર્મ હોય એને પાઠ કરે તો જ બાધક કરે છે, એને એ રસ્તે કરી તો નહીં તો બાધક નથી કરતા ઠાકોરજી એ રીતે બહારના કામ કાર્યો માટે. પણ તો બાધક કરે છે પછી કેવી રીતે સમજાય છે? તમારો અવાજ ક્લિયર નથી. કારણ કે આપણે અચ્છા અવાજ જ ક્લિયર નથી. નેટવર્ક તો બરોબર છે. તમે એક કામ કરો, વિડિયો બંધ કરીને એક મિનિટ દેજો. ઘણી વાર એવું થાય છે કે હવે સમજાય છે?
સંભળાય છે? હા હા, જે આપણે પહેલા એમ સમજ્યા કે સેવામાં ઠાકોરજી સેવામાં બહારના કાર્યો કરીએ તો સેવામાં જો સેવાને રૂપે ગણીએ તો બાધક નથી કરતા, તો એ ઠાકોરજી પ્રતિબંધ નથી આપતા, આપણે એમ સમજ્યા. પણ છેલ્લે એમને ચિંતા પણ થાય છે કે ઠાકોરજી બાધક કરે છે તો લૌકિકમાં બાધક કરે છે તો પછી આમાં સેવામાં બાધક નહીં કરે એવી ચિંતા બતાવે છે. પણ લૌકિકમાં બાધક તો જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એમ કીધું કે કામ અર્થ અને ધર્મને માટે કરીએ તો જ બાધક કરે છે, નહીં તો નથી કરતા. તો પછી અહીંયા કઈ રીતની ચિંતા, મને થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ છે. હા, આવીશું, એના ઉપર આવીશું આપણે. હું એટલા માટે લઈ રહ્યો છું કે જેમાં જે કંઈ પણ શંકા રહી ગઈ હોય એનું સમાધાન થઈ જાય. આપણે એની ઉપર આવીશું. એ જે ગુસાઈજીની જે ફૂટનોટ છે ને એ આપણે વિશેષ કરી લેવાના છે, કારણ કે એનું અનુવાદ પણ આપેલું નથી. એ લઈશું આપણે. तो बीजू कोई समस्या, कोई प्रश्न है का? एक साथ आप लोगन के आ जाए तो फिर वह हिसाब से एक एक को समाधान करते चलेंगे. और यदि कोई को समस्या है तो प्लीज हैंड रेस करियो. हाँ, तो अपन मंगलाचरण के बाद में गुसाई जी ने ये प्रश्न कियो कि ननु भगवदीयताम कथम चिंतो, भगवदीयन को चिंता काय के हो सके, क्योंकि सबसे पहले तो भगवदीन को चिंता होनी ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सब कुछ तो समर्पित कर चुके हैं. जब सब कुछ समर्पित कर चुके हैं तो भगवदीय हो गए हैं, यानी भगवत संबंधी हो गए हैं, तो फिर चिंता हो ही नहीं है देखो जाए तो वो वाक्य लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मनिवेदनो ही भगवत भजनार्हा नेतरे. जो आत्मनिवेदी हैं वो ही भगवत भजन के अधिकारी हैं, अन्य नहीं. तो मतलब जिनने सब कुछ निवेदन कर दियो है वो ही भगवत भजन के अधिकारी हैं. यानी खास करके जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम की बात आ रही है तो वहां पे केवल जो आत्मनिवेदी हैं, जिनने आत्मनिवेदन कियो है, उनको ही उनकी ही भक्ति प्रभु स्वीकार हैं. तो जब ऐसी परिस्थिति है तो आत्मनिवेदी जो है वो तो सब कुछ निवेदन कर दे हुए हैं. तो वही के लिए कह रहे हैं कि तत्र च ऐहिक पारलौकिकयोर अर्थयोर न अवशिष्टम किंचिद असमर्पितम. यानी आत्मनिवेदन करते समय अपन सब कुछ समर्पित कर दे हुए हैं, ऐहिक भी और पारलौकिक भी. तो ऐसी कोई भी वस्तु रह नहीं जाए है, ऐसा कोई भी पदार्थ रह नहीं जाए है कि जाको आत्मनिवेदन न भयो हो. अपन सब कुछ सर्वस्व निवेदन कर दे हैं. तो एवं सती देहादि निर्वाह के न कार्य. जब ऐसी स्थिति है कि अपन सब कुछ निवेदित कर चुके हैं तो देहादि को निर्वाह कैसु करनो, ये चिंता हो सके है भगवतियन को. तो वह के लिए कह रहे हैं कि निवेदितार्थ है ना, तो मतलब चिंता सु यहाँ पे तात्पर्य है कि कौन से वस्तु सु देहादि को निर्वाह करना चाहिए, ये चिंता है. तो वह में क्या कौन सी वस्तु सु, यानी जो निवेदित कर चुके हैं वासु अपनी देहादि को निर्वाह करनो, अथवा अनिवेदित पदार्थ सु अपनो निर्वाह करनो. तत्र नाद्य. अब वहां में पहलो विकल्प लियो कि निवेदित पदार्थ सु करनो, तो कह रहे हैं कि वो तो नहीं कर सको. क्यों नहीं कर सको? तदीय अर्थस्य तदिच्छा बिना ग्रहितुम अशक्यत्वात्. भगवदीय जो अर्थ है, भगवदीय जो पदार्थ हैं, उनको अपन एक वक्त अपन ने निवेदन कर दियो तो वो भगवदीय हो गई, भगवत संबंधी हो गई, भगवान की हो गई. अब भगवान की वस्तु को अपन उनकी इच्छा बिना कैसे ले सकें? ये तो अशक्य है. और इच्छा भगवान की है या नहीं ये कैसे अपन जान सकें? ये भी नहीं अपन जान सकें. इच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वात्. वस्तुतस्तु इच्छायामपि सत्याम तदुपयोगो अनुचितः सेवकस्य. यहाँ पे कह रहे हैं वस्तुतः देखो जाए तो अगर इच्छा है भी भगवान की तो भी सेवक के लिए वाको ग्रहण करना अनुचित है. न च तदीयानाम देहादीनाम तदीयार्थेन पोषणम न दोषायति वाच्यम.
और फिर यूं कह रहे हैं कि तुम ये भी नहीं कह सको कि जो भगवदीय हैं वो उनकी देह आदि को निर्वाह भगवदीय पदार्थ सुकर पोषण करनो हमें दोष नहीं है, ऐसा भी तुम नहीं कह सको। क्यों नहीं कह सको? स्वतस्तया कृते तथा कृते दोषावहत्वात् तदिच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वाद् इत्युक्तम। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा कि हमें दोष नहीं है? क्योंकि खुद करके सामने से चल के अपन ले लें अपने उपयोग के लिए, तो वो दोष वाली हो सके, तो मतलब तो हमें दोष हो सके है। और भगवान की इच्छा को जानना तो अशक्य है। यासु ये दोष तो है, ऐसे करके पूर्व पक्ष वहां खड़ो कियो। और वही पूर्व पक्ष आगे ये दूसरो विकल्प को भी ले रहा है कि भाई तुम बिना निवेदित किए पदार्थ को तुम अपने लिए उपयोग करो, तो कहे न द्वितीय। क्यों भाई? अस्वधर्मत्वात्, बिना निवेदित किए पदार्थ को भी तुम अपने लिए उपयोग में नहीं ले सको। क्यों? क्योंकि वो अस्वधर्म हो जाएगा, दास धर्म नहीं कहलाएगा। निवेदित अर्थस्य स्थित्याद्यर्थम स्वस्य विचारस्य अपि अनुचितत्वात्। जो निवेदित जो अर्थ है आपको स्थिति आदि के लिए, आपको अपनी स्थिति के लिए बिना निवेदित पदार्थ को उपयोग करने को विचार करना भी अनुचित है। तद अभिमाने तत्संभवात्, मतलब तुम्हारा कुछ वाक्य अंदर अपनो होए को तुम्हारी ममता में थोड़ी बहुत रह गई हो, तो ही तुम ये विचार करोगे कि मैं अपने लिए उपयोग करूं। एवं सती देहादि नाश संभवेन भजन असंभवा तद्वैर्थ्यापात। अगर ऐसा हुआ कि न तो तुम निवेदित पदार्थ ले सको और ना ही अनिवेदित पदार्थ ले सको, तो ऐसे में तो देहादि को ही नाश हो जावे की स्थिति आ जाएगी। देह ही नहीं टिकेगो, तो फिर देह नहीं टिकेगो तो भजन का ऐसे होएगो, भक्ति कैसे करोगे, सेवा कैसे करोगे? मार्ग एवं च अयम उच्छिद्येत, और वो नहीं कर पाए तो जब मार्ग पे चलने वाले ही नहीं रहेंगे तो मार्ग कहाँ से रहेगा? मार्ग एवं उच्छिद्येत अतो निवेदने भजनाधिकारः तस्मिन् सति तद निर्वाह इति उभयतः पाशारज्जु। यहाँ पे दोनों तरफ की मुश्किल खड़ी कर दी है कि भाई निवेदित हो तो ही भजन को अधिकार मिले, ये बात अपनी अपनी जगह है। और निवेदित हो जाए के बाद में वहां को उपयोग अपन अपने लिए नहीं कर सके, ये बात भी है। तो दोनों ही होवे के कारण पाशारज्जु की स्थिति आ गई है। एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, ऐसी वाली स्थिति आ गई है कि बिना निवेदन किए हम भजन कर नहीं सके, और निवेदन हो जाने के बाद वो पदार्थ को उपयोग अपने लिए कर नहीं सके। तो जितनो निवेदन कर दियो है वहां के बाद कछु बचो ही नहीं कि जाको अनिवेदित हो है, तो जासु अपन अपना निर्वाह कर सके। तो फिर वो मुश्किल हो गई कि अब कैसे होगा, देहादि को अपन रक्षा कैसे करेंगे, देहादि को अपन कैसे मेंटेन करेंगे, ये बात हो गई। अत्र वदामः, तो अब आपको उत्तर दे रहे हैं, ये पक्ष खड़ा करके आपको उत्तर दे रहे हैं कि दारान सुतान गृहान प्राणान परस्मिन् निवेदनम एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदनाम मयि संजायते भक्ति ही कौन्यर्थस्यावशिष्यते। ये एकादश स्कंद को वाक्य है, भगवान को उद्धव जी के प्रति वो यहाँ प्रमाण रूप में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इन वाक्यांशु ये पता चल रही इत्यादि वाक्य ही तद आवश्यकम, यानी निवेदन आवश्यक है, ये बात अपने को पता चल रही है। साक्षात श्री गोकुलेश भजन अधिकार रूपत्वा, क्यों? क्योंकि वो ही निवेदन ही साक्षात गोकुलेश के भजन को अधिकार दिलावे है। वैसे ही जैसे कि एक जनोई प्राप्त जो ब्राह्मण होएगो, बालक होएगो, वाको ही गायत्री मंत्र के उपदेश मतलब गायत्री वाई को वैदिक कर्म करवे को अधिकार है। जाको गायत्री मंत्र को उपदेश मिल चुको है, वाही को
वैदिक कर्म करने को अधिकार मिले हैं, वैसे ही जो निवेदन कर चुको है वाकु ही साक्षात गोकुलेश के यानी पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा को अधिकार मिले हैं। निवेदनस्य सार्थकत्वाय भजन सिद्ध्यर्थम आवश्यक अव्यवहारार्थम निवेदितस्यैव स्वस्य स्वार्थम विनियोग कार्य। अब ऐसी स्थिति में आचार्य चरण ने भी आज्ञा करी है कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत। तो निवेदित जो निवेदन की सार्थकता के लिए तुमने निवेदन कर दियो है तो वाकी सार्थकता कब होगी, और वाकी सार्थकता होगी भजन सु, सेवा सु। तुम सेवा करोगे तो तुम्हारो निवेदन की सार्थकता होगी, और भजन सिद्ध्यर्थम आवश्यक व्यवहारार्थम निवेदितस्यैव स्वार्थम विनियोग कार्य। भजन सिद्ध होने के लिए तुमको अपने आवश्यक व्यवहार की सिद्धि के लिए अपने लिए उपयुक्त पदार्थ वही होने चाहिए जो निवेदित किए जा चुके हैं। अन्यथा मतलब अगर ये स्थिति है कि बिना निवेदित के तुम कोई वस्तु को अपने लिए भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये स्थिति बता दी, ये नियम बता दियो है। तो ये नियम कब बताया, जब वो अलाउड है तभी तो। मतलब ये समस्या, ये जो पहले जो शंका उठाई गई कि भाई निवेदित हो चुको है तो भगवान की इच्छा बिना अपन कैसे वाको अपने लिए उपयोग कर सकें, ये जो शंका थी वाको मिटावे के लिए कह रहे हैं कि ये ऐसे कोई नियम नहीं है कि निवेदित को अपन अपने लिए उपयोग नहीं कर सकें। अब वाके लिए वहां पे एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि अन्यथा दार परिग्रहोत्तर क्षणे एव तन्निवेदने अकृते अग्रे तद विनियोगे प्राप्ते तत्परिग्रह वैर्थ्यापात। तो दार को परिग्रह करने के बाद में यानी कि पाणी ग्रहण कर लियो, पत्नी को स्वीकार कर लियो विवाह के में, और वाके बाद में वाको निवेदन अगर नहीं हुआ है तो वाको अपन मतलब बिना निवेदन किए तो वाको अपन अपने घर में ले नहीं सके, और निवेदन नहीं कियो क्योंकि वाको अपन अपने लिए भी वाको मतलब स्वयं भी संबंध रखेंगे, तो वो संबंध कैसे बन पाएगा अगर तुम वाको निवेदन कर दियो तो निवेदन को अपने लिए उपयोग नहीं कर सको, तो फिर तुम मतलब पति पत्नी को संबंध ही संभव नहीं हो पाएगा यदि ये दिमाग में होएगा तो कि निवेदित को अपन अपने लिए उपयोग में नहीं ले सकें करके, तो फिर ऐसे तो फिर विवाह करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यानी अपने लिए उपयोग कर सके हैं अपरंच। और फिर दूसरो कारण एक और भी बता रहे हैं कि दाने ही स्वविनियोग न स्वविनियोग न तो निवेदन है। वहां पे ये बता रहे हैं कि दान में स्वयं अपने लिए उपयोग नहीं कर सके, यहाँ निवेदन में ये बात नहीं है, दान में और निवेदन में अंतर है। अन्यथा निवेदिता नादेर भोजनम न स्यात्। अगर ऐसा हो तो निवेदित अन्न आदि को भोजन नहीं किया जातो। अनिवेदित निषिद्धत्वात्, और अनिवेदित तो निषिद्ध कर ही चुके हैं भगवान आचार्य चरण पहले ही, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरित कह के वो तो निषिद्ध कर ही चुके हैं। तो निवेदिता नाम अर्थानाम भगवत भोगार्थम विनियोगे जाते तद दत्त प्रसादत्वेन सोपभोग कृति ही उचिततरा। जो निवेदित के पदार्थ, निवेदित जो पदार्थ हैं उनको एक बार ठाकुर जी की सेवा में उपयोग हो गए, वाके बाद में भगवान के द्वारा प्राप्त वो प्रसाद के रूप में अपन अपने लिए ग्रहण कर सकें, और वो ही उचित तर है, यानी सबसे बेस्ट तरीका वही है कि ठाकुर जी को में उपयोग हो जाए के बाद स्वयं के उपयोग में लेनो दास धर्मत्वात्। ये क्योंकि अपनो दास धर्म ये कहे। उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जये मही, ये बात उद्धव जी ने कही है कि हम तो आपके उच्छिष्ट भोजन करने वाले दास हैं, आपके उच्छिष्ट को भोग करने वाले हम आपके दास हैं,
क्योंकि हम याके द्वारा यानी आपके द्वारा उच्छिष्ट जो पदार्थ को हम भोग करें तो वासु हम आपकी माया के ऊपर विजय पा सकें। आत्मशोधकत्वाच्च, क्यों? क्योंकि उच्छिष्ट जो भोजन है भगवान को उच्छिष्ट यानी भगवान को प्रसाद जो है वो आत्मशोधक हुए हैं, वो आत्मा की शुद्धि करे। आत्मा सु यहाँ पे तात्पर्य है देह आदि की शुद्धि करे है। किंतु प्रभो निवेदितार्थस्य विनियोगे जाते अग्रे तदर्थम यत्न कार्यो न वा इति भवति चिंता। तो चलो वो चिंता तो मिट गई, तो अब दूसरी चिंता ये हो रही है कि भगवान को निवेदित पदार्थ को एक वक्त में विनियोग हो गया, अपन पैसा कमा के लाए, वह पैसा स्वपन ठाकुर जी के लिए सामग्री आदि सिद्ध खरीदी, सामग्री खरीदी और वह को फिर सिद्ध करी और वो ठाकुर जी को भोग धरी, और अब वो तो पदार्थ को विनियोग हो गया, वाको अपन ने प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर लियो। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार अपन सेवा करेंगे, सेवा तो सतत चलने वालों प्रकार है, और वहां में दूसरे दिन फिर वापिस अपने को जरूरत लगेगी भोग आदि धरवे के लिए, फिर सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से लाएंगे? वो करवे के लिए, वो लावे के लिए अपने को कमावे जाना पड़ेगा। तो वो कमावे को यत्न करनो या नहीं करनो ये चिंता हो सके। तत्करणे बाहिर्मुख्य संभव सेवा प्रतिबंधश्च, यदि अपन वो करेंगे तो बहिर्मुखता की संभावना है, और दूसरी संभावना ये भी है कि सेवा में प्रतिबंध डाला जा सके भगवान के द्वारा। त्रैवर्गिकायास विघातकत्वात् इति वाक्यात्। भाई कोई यूं पूछे कि ठाकुर जी के द्वारा सेवा में प्रतिबंध क्यों लाया जा सके है, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो त्रैवर्गिकायास विघातकत्वात् ये बात कही गई है श्रीमद् भागवत में, जहां पे कहा है कि भगवान अपने भक्तन के त्रैवर्गिक आयासन को विघात कर रहे हैं। ये त्रैवर्गिक आयास कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग कहे जाए हैं। मोक्ष के लिए नहीं, मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष में भगवान कोई प्रतिबंध नहीं डाले हैं, पर धर्म, अर्थ और काम, ये तीन के जो प्रयास, इन तीन पुरुषार्थन को प्राप्त करने को जो प्रयास करें तो वामे ठाकुर जी प्रतिबंध लावे हैं, ऐसी बात कही गई है। भगवत कृत प्रतिबंधश्च तत्र स्यात्। तो वाक्य लिए यहाँ पे देखो छोटो फुट नोट, मैंने पिछले हफ्ता भी अपन ने वाक्य ऊपर चर्चा करी थी, वो फिर से करें अपन यहाँ पे। किंच तत्करणे बाहिर्मुख्य संभव इत्यारोप्य उक्त चिंता भावाय इदमत्र विचार्यते। ये जो छोटो किंच तत्करणे बाहिर्मुख्य संभव, मतलब अगर अपन फिर से ठाकुर जी के लिए विनियोग में लावे के लिए पदार्थन को कमावे को अपन प्रयत्न करनो के नहीं करनो, या की चिंता है ना, तो वाक्य लिए कह रहे हैं कि सेवार्थम यत्न करने बाहिर्मुख्यम सेवा प्रतिबंधश्च न संभवति। वहां पे ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सेवा के लिए यत्न करेंगे तो वहां में प्रतिबंध करेंगे भगवान। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तस्य सेवांगत्वेन तत्पूरकत्वात्, क्योंकि आप वो जो प्रयास कर रहे हो वो सेवा के अंग रूप में है, वो सेवा को ही अंग है। आप जाके बाहर कमावे के लिए जा रहे हो, धन कमावे के लिए भी यदि जा रहे हो तो वो सेवा के अंग के रूप में ही करवे जा रहे हो। तत्पूरकत्वात्, वो सेवा के अंग के रूप में होने के कारण वो सेवा को पूरक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सेवा को संघ में वो जा रही है, सेवा की कॉम्प्लीमेंट्री है, वासु विरुद्ध में नहीं जा रही है। ये नहीं है कि तुमको सेवा से दूर ले जा रही है, बल्कि तुमको सेवा के पदार्थ इकट्ठे करने में सहायता ही होगी वासु। तो वाके कारण वो तत्पूरक है, और तदकरणे तद असंभवाच्च। यदि वो नहीं करोगे, यदि तुम कमावे नहीं जाओगे तो फिर वो संभव नहीं होगा, मतलब तुम कमा नहीं सकोगे
तो तुम और पदार्थ भगवान के विनियोग में लावे के लिए तुम नहीं ला सकोगे, वो असंभव बात हो जाएगी। यासु ठाकुर जी वहां में बहिर्मुक्ता या सेवा प्रतिबंधकता नहीं हो सकेगी वहां में, क्योंकि वो सेवा के अंग के रूप में है। अब उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को। न च त्रैवर्गिकायास इति वाक्यात् तत्र भगवत कृत प्रतिबंध इति वाच्य। त्रैवर्गिक पद वैयर्थ्यापत्ते है, अन्यथा आयास विघातकत्वम इत्येवतायतैव चारित अर्थात स्यात्। यानी वहां पे त्रैवर्गिक को आयास को विघात करे हैं भगवान, न कि आयास मात्र को। आयास को मतलब क्या है? प्रयास, तुम्हारो प्रयत्न, तुम जो एफर्ट कर रहे हो वो हर कोई एफर्ट को ठाकुर जी फेल नहीं कर रहे हैं। तुम जब त्रिवर्ग को आयास करो, तुम अपने धर्म अर्थ और काम को प्रयास करो, वहां पे भी ये विचार के कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये विचार के जब तुम करवे जाओ तब भगवान वहां में प्रतिबंध लाए हैं। अगर तुम ये सोच के करो कि ये भगवत संबंध भगवत सेवा के सहायकता के रूप में ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, तो फिर वो तुम्हारा साधारण धर्म अर्थ काम नहीं हो सके, हो जाए है, वो बन जाए सेवा को अंग। तो वाकु फिर ठाकुर जी वामे घात नहीं करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रैवर्गिक आयास में हर कोई प्रयत्न को ठाकुर जी फेल नहीं करें। अगर ऐसा हो तो प्रयत्न मात्र को सब ठाकुर जी फेल कर देते, पर ऐसा नहीं कहिए। यहाँ पे आयास विघातकत्वात् नहीं कहिए, त्रैवर्गिक आयास विघातकत्वात् कहिए। अतः स्वकीय नाम त्रैवर्गिक आयास विघातमेव भगवान करोति, न स्वसेवार्थक आयास विघातम इति निश्चयते। ऐसे ये निश्चय हुआ है कि जो स्वकीय हैं उनके त्रैवर्गिक आयास को विघात करें। यानी जो जो स्वकीय, जिनको अपने मान लिए हैं भगवान ने, वो यदि भूलसु वो त्रैवर्ग को प्रयास कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम को प्रयास कर रहे हैं, तो ठाकुर जी हमें प्रतिबंध लाए कि तू मेरे को छोड़ के तू अपने लिए करवे जा रहे हो। जब तू मेरे को समर्पित हो चुके हो है, तो तू फिर ये सोच के करवे जा रहे हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो मैं हमें प्रतिबंध लाऊंगा। पर हाँ, यदि सेवा के अंग के रूप में तू करवे जा रहा है तो अवश्य कर। तू मेरे लिए करवे जा रहा है तो तू अवश्य कर। न से स्वसेवार्थक आयास विघातम इति निश्चयति। ये निश्चय हुआ है कि ठाकुर जी केवल भक्तन के त्रैवर्गिक आयास को विघात करें, न कि स्वसेवार्थक आयास को विघात। अन्यथा यत्न मात्र से निषेधे भजन मार्ग एवं उच्छिद्येत। यदि सारे ही यत्न ठाकुर जी फेल करते रहेंगे तो भजन मार्ग ही उच्छेद हो जाएगा। कोई भक्ति ही नहीं कर पाएगा। भक्ति को भी प्रयत्न करवे जाए और वाको ठाकुर जी आघात को विघात कर देवे, तो फिर कौन भक्ति कर पाएगा? भक्ति ही नहीं कर पाएगा कोई। ननु आत्मनिवेदितानां इतर यत्न असंभवेन तज्जनित चिंता अभावात् कथम चिंता न कार्य इत्युपदेश। अब शंका ये हो रही है कि आत्मनिवेदन जो हैं उनको ही, उनको इतर यत्न तो संभवित ही नहीं है, वो कोई दूसरा यत्न करेंगे ही नहीं। तो फिर जब वो अन्य यत्न ही नहीं करेंगे तो वासु जनित चिंता को भी उनको अभाव ही होगा। जब वो सेवा को छोड़ के अन्य कोई यत्न ही नहीं करेंगे तो वासु जनित चिंता को भी अभाव ही होगा, तो चिंता होगी भी नहीं। तो फिर यहाँ चिंता न कार्य कहवे को आवश्यकता ही का है? क्यों कह रहे हैं कि चिंता न कार्य? अत्र इदं प्रतिपाति वाक उत्तर आप दे रहे हैं। भजन मार्गे ही भगवद अंगीकार त्रिविधा। भक्ति मार्ग में भजन जो अंगीकार है भगवान के द्वारा भक्तन को अंगीकार है, वो तीन प्रकार से हो है। तीन मार्ग है, तीन विधि हैं कि जिनके द्वारा, मतलब त्रिविध भक्त हैं जिनको
भगवान स्वीकार करे हैं। पुष्टि मर्यादा प्रवाह भेदे। पुष्टि पुष्टि के भक्त हैं, मर्यादा के भक्त हैं, प्रवाह के भक्त, प्रवाह इत्यादि भेद हैं अलग अलग सब में। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ अपन देखें तो वहां में केवल शुद्ध पुष्टि ही नहीं, पुष्टि पुष्टि मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि, ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्त हुए हैं। तो भगवान उनको अंगीकार इन तीनन में से कोई एक में करे हैं। तत्रापि वही त्रैविध्यम, तत्र पुष्टि पुष्टव अंगीकृतस्य नेतर यत्न संभावना की। जहां पे पुष्टि पुष्टि में ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं, जो भक्त को पुष्टि पुष्टि कोटि में स्वीकार किए हैं, उनको तो कोई अन्य यत्न की संभावना भी नहीं है। यथा गोपीजन इत्यादि ब्रज भक्तन की बात ले लो, तो उनको तो पुष्टि पुष्टि में अंगीकार भयो है, या वो अन्य कोई यत्न तो करेंगे ही नहीं, तो संभावना ही नहीं है। परम मर्यादा पुष्टौ प्रवाह पुष्टौ च अंगीकृतस्य तत्करणं मर्यादा प्रवाहांशः तद्विघातः पुष्ट्यंशः। पर जो पुष्टि मर्यादा पुष्टि में या प्रवाह पुष्टि में अंगीकृत जीव हैं, वो अन्य यत्न करवे जाएं तो वो उनको मर्यादा या प्रवाह अंश होवे के कारण वो अन्य यत्न करेंगे, और उनको जो मर्यादा और प्रवाह अंश के कारण वो अन्य यत्न करेंगे, तो भगवान भी पुष्टि अंश सुवा को विघात करेंगे। तो भगवद अंगीकार मर्यादा प्रवाहेण तद विघातः पुष्ट्यंशः। तथा च आत्मनिवेदिनां मर्यादा प्रवाह संबलितानां यथा इतर यत्ने कृते बहिर्मुख्य सेवा प्रतिबंध तद्विघातकादिकं भवति, तथा सेवार्थकेपि यत्ने भविष्यति इति भवति चिंता। यानी वहां पे जो मर्यादा और प्रवाह पुष्टि में जो अंगीकृत हैं, वो क्या देखेंगे कि भगवान अन्य यत्न हमारे फेल कर रहे हैं। जब हम करवे जा रहे हैं तो भगवान हमको या तो बहिर्मुखता हमारे अंदर आ जा रही है, या फिर सेवा प्रतिबंधक भगवान ही विघात कर दे रहे हैं हमारे प्रयासन को। तो जब वो विघात कर रहे हैं तो हम सेवा को प्रयत्न करवे जाएंगे तो वहां में भी भगवान विघात कर देंगे, तो ये चिंता हो रही। तो अतस्तद अभावाय, तो ऐसी कोई चिंता हो रही हो तो वाकु मिटावे के लिए तान प्रति चिंता कापी न कार्य, वो चिंता को मिटावे के लिए यहाँ चिंता कापी न कार्य कहे जा रहे हैं। अतः सेवार्थम यत्न कर्तव्य एव इति नानुपपत्ति काचित। ऐसु सेवा के लिए यत्न तो करनो ही चाहिए, हमें कोई उपपत्ति अनुपपत्ति नहीं है, ये तो करनो ही चाहिए। तो जो चिंता हो रही है सपनाबेन, वहां पे यही बात की चिंता, मतलब वो यही बात को वहां पे कहे जा रहा है कि जब अन्य यत्न फेल कर रहे हैं तो उनको सब अन्य यत्न फेल होते देख के उनको ये चिंता हो कि हम सेवा को यत्न करेंगे तो वहां में भी ठाकुर जी विघात नहीं कर दें, ये कारण नहीं है, पर उनको ऐसी चिंता हो तो यहाँ आचार्य चरण आज्ञा करें कि चिंता कापी न कार्य, यासु चिंता नहीं करने की बात कही जा रही है। तो ऊपर अपन देखें तो अकरणे निवेद्या भावेन भवति च दुःखम, यानी तुम नहीं करोगे अगर, यहाँ पे क्या प्रश्न है तो कि अन्य मतलब दूसरे पदार्थ आगे विनियोग में लावे के लिए अपने को यत्न करना, यानी कि अपने व्यापार आदि वगैरह जो भी अपन कमाई को साधन करवे जा रहे हैं तो वो करनो के नहीं करनो, क्योंकि नहीं करेंगे तो निवेद्य को भाव होएगा। आगे अपन भोग ठाकुर जी को कछु विनियोग करवे के लिए पदार्थ अपने पास होंगे नहीं, यदि अपन व्यावृत्ति नहीं करेंगे तो यासु दुख होवे है।
यासु ऐसे जिनको चिंता हो रही है, एवं भूतान स्वान उपदिशन्ति चिंता कापि न कार्यायति। तो जिन भक्तन को ऐसी चिंता हो रही है, उन भक्तन को उपदेश कर रहे हैं यहाँ पे कि चिंता कापि न कार्य, कोई प्रकार की चिंता करनी नहीं। तो पहलो श्लोक आयो, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि इति। भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकींच गतिम। अब अपन मैं आपको शेयर स्क्रीन कर दूं ताकि अपन तो ये पहलो श्लोक आयो कि कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी। कौन के नहीं करनी? निवेदित आत्मा जो हैं उनको कभी भी कोई भी चिंता नहीं करनी। ये पहले श्लोकार्थ को अर्थ को। दूसरे में कह रहे हैं भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। भगवान भी पुष्टिस्थ हैं तो लौकिक गति नहीं करेंगे। ये भगवत श्लोकार्थ है। अब या के ऊपर गोसाई जी का आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक तदभावेपि भगवदर्थापि सा न कार्या। तुमको लौकिक की चिंता नहीं हो तो भी लौकिक तद अभाव है। तद यानी क्या नहीं, क्या किस बात का अभाव है लौकिक में? चिंता। लौकिक की चिंता तुमको न भी हो तो भी भगवद अर्थापि सा न कार्या। चिंता तो भगवद अर्थ भी नहीं करनी चाहिए। एतदाहु कापीति शब्देन अंगीकारेण इति कापीति शब्देन। अपन ने ये यहां तक को गोसाई जी की पंक्ति अपन ने पढ़ी। अब या के बाद अपन देखें कि नीचे ये वल्लभ जी का आज्ञा कर रहे हैं। लौकिकेति यानी लौकिक तदभावेपि सु लेके इति शब्देन तक वाक्य ऊपर और स्पष्टीकरण यहाँ पे कर रहे हैं श्री वल्लभ जी। वो आज्ञा कर रहे हैं स्त्री पुत्रादि निर्वाहक यत्नास्थायाम अपि भगवन् नैवेद्यार्थक यत्ने आस्था संभवति सापि न कार्या इति अर्थ। यानी स्त्री पुत्र आदि के निर्वाहक को यत्न में आस्था होवे तो अनास्थायाम अपि यानी आस्था तुमने सब कुछ समर्पित कर दियो है, तुम स्त्री पुत्र आदि भी तुमने समर्पित कर दिए हैं, तो उनके निर्वाह का यत्न करने में तुम्हारी आस्था भी नहीं है। तथापि भगवान नैवेद्यार्थक यत्ने आस्था संभवती। यानी तुमको व्यावृत्ति में कोई आस्था नहीं है, लौकिक में कोई आस्था नहीं है, कोई तुमको हमें अटैचमेंट नहीं है, व्यावृत्ति के लिए भी तुमको ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं है। परंतु जब भगवत संबंधी अपने को पदार्थ इकट्ठे करने हैं, ठाकुर जी में विनियोग हो सके, वाके लिए अपने को कमाई करनी है, तो कम से कम ये सोच के अपने को व्यावृत्ति में आस्था तो हो जाए है कि भगवान को निवेदन करने के पदार्थ अपने को वासु मिलेंगे। तो भगवान नैवेद्यार्थ के यत्न आस्था संभवती। तो वा कारण से तुमको वा यत्न में आस्था संभव हो सके है, सापि न कार्य। तो वो भी आस्था नहीं रखनी चाहिए, ये अर्थ है। तत्राप्य आस्थायाम तत्संपादकेषु आस्थिति सिद्ध्या बाहिर मुख्यम स्यादेव इति भाव। क्यों नहीं होनी चाहिए वहां आस्था? तो कह रहे हैं कि तत्रापि आस्थायाम तत्संपादकेषु आस्थिति सिद्ध्या बाहिर मुख्यम स्यादेव इति भाव। मतलब यदि तुमको वहां में आस्था हुई, तुमको अटैचमेंट हुई, तो वा संपादक जो
आस्थिति वामे जो स्थिति वामे जो आसक्ति होएगी, वाके कारण बहिर्मुखता होवे की संभावना है। ये हो सके कि तुम बहिर्मुख हो जाओ, तुम्हारे दिल दिमाग में सु भगवान को विचार छूट के तुमको वो व्यापार धंधा इत्यादि या जो भी तुम नौकरी जो भी कुछ कर रहे हो तो हमें आस्था होवे लग जाए कि भाई वो अपने को ठाकुर जी के लिए ही सही पदार्थ इकट्ठे करने में अपने को सहायता मिल रही है वाकी वजह से या सु हमें आस्था हो सके है। ननु अनास्थया कुतो यत्नो न सिद्ध्येत इति आशंका उत्तरार्ध सामान्यतः अंगीकारेण वेति। अब वहां अपन को आस्था नहीं रखनी है, क्यों? क्योंकि वासु बहिर्मुखता हो सके है। परंतु आस्था नहीं रखेंगे तो प्रश्न ये होगा कि बिना आस्था के किए गए यत्न कभी भी सफल नहीं हो गए। जो भी करो कहवे ना कि जो भी करो तुम जो भी कार्य करो वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो। ये भी तो एक सच्चाई है। यासु भी अपन बच नहीं सके हैं। अपन जो भी कुछ करेंगे वो कंसंट्रेशन के संग में और वहां में अपन दिल लगा के नहीं करेंगे तो वो काम सफल ही नहीं होगा। तो तब तो फिर वहां में आस्था हो ही जाएगी। तो आस्था हुई वहां में तो फिर अपने को चिंता होगी कि अरे अपन तो बहिर्मुख हो रहे हैं। तो वह के लिए क्या जवाब है? तो वहां पे अपन देखो अंगीकारेण इति, यहाँ पे गुसाई जी जो अंगीकारेण वस्तु जो पंक्ति बता रहे हैं वहां में आपको जवाब मिल जाएगा कि अंगीकारेण सर्वं स्वतः एव करिष्यति इति विश्वासो यतस्तस्यावश्यक। वहां पे आवश्यकता व्यावृत्ति में आस्था रखने की नहीं है, परंतु आस्था रखनी है तो अंगीकार में भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास रखो। विश्वास तुम्हारे प्रयत्न में नहीं, पर विश्वास तुम्हारे भगवान के जो सामर्थ्य पे रखो। क्यों? अंगीकारेण ही सर्वम सतैव करिष्यति। भगवान ने एक वक्त अंगीकार कर लियो तो वह अंगीकार के द्वारा ही सब कुछ स्वतः ही करेंगे, ये विश्वास वहां पे होना चाहिए। यदि ये विश्वास होगा तो यत्न में विश्वास तुम्हारा हट के तुमको ठाकुर जी के प्रयत्न में ठाकुर जी के सामर्थ्य पे विश्वास होगा। ठाकुर जी के सामर्थ्य पे विश्वास होगा तो फिर अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अपन जो भी प्रयत्न करेंगे वह में सफल अपन अपने प्रयत्न से नहीं होंगे, परंतु ठाकुर जी के सामर्थ्य से होंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने अपने को अंगीकार कियो भयो है, ऐसु अपने सारे प्रयत्न को सफल बनाना वो कार्य तो ठाकुर जी के। क्योंकि सारे कार्य वैसे भी भगवत इच्छा के बिना तो होने नहीं है। तो ये भी जो कार्य हो रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा बिना नहीं होगा। तो ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी ने अंगीकार किया है अपने को, तो अपने सारे प्रयत्न को सफल बनावे को कार्य भी ठाकुर जी ही करेंगे। ये बात को विश्वास आवश्यक है। वह यत्न में विश्वास आवश्यक नहीं है, वह यत्न में आसक्ति जरूरी नहीं है। वह यत्न में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु आसक्ति और विश्वास तुमको ठाकुर जी के सामर्थ्य पे होना चाहिए। भगवतोपि तथा नियम, भगवान को भी वैसा नियम है कि मैं जिनको अंगीकार कर रहा हूं उनको योगक्षेम को मैं वहन करूं। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये बात वहां गीता जी में भी कही है आचार्य ठाकुर जी ने, और भागवत ने भी आपको है कि जो गोवर्धन उद्धरण कियो वाह बखत को वाक्य है भगवान को कि जो सब कुछ समर्पित करके जो मेरे मैं ही विश्वास रख के मेरे शरणागत आए हैं उनको सब तरह से रक्षा करना ये मेरा व्रत है। स्वयं में व्रत आहित यूं के वहां पे भगवान भक्तन के लिए बता रहे हैं कि इनने मेरो सब तरफ सु परिग्रहण कियो है, यासु इनको योगक्षेम को वहन करना ये मेरो व्रत है।
तो अपन अपनो व्रत सु भले चूक जाए, पर ठाकुर जी अपने व्रत सु कभी नहीं चूके, क्योंकि ठाकुर जी सत्य संकल्प है। ठाकुर जी के वचन सत्य है और ठाकुर जी को संकल्प सत्य है। अपनो संकल्प झूठो हो सके है, अपनो आधे अधूरे मन सु कियो भयो संकल्प हो सके, अपनो समर्पण अधूरो हो सके है, पर ठाकुर जी को संकल्प, ठाकुर जी को अंगीकार, वो कोई अधूरो नहीं हो गए। जीव कैसो भी प्रकार को होए, वाको संकल्प अधूरो होए, वो आधे मनसु शरण में आयो भयो होवे, पर वारे एक वक्त कह दियो कि मैं श्री कृष्ण शरणम मम, वो ही मेरे शरण स्थान है और मैं आपको दास हूं, ये जब वचन वाने मुंह से कह दिए तो ठाकुर जी के लिए बाकी कृति भी मायने नहीं रखे हैं फिर। और फिर दूसरी बात कि कौन के द्वारा शरण में आयो है, ये दो वस्तुएं हैं कि जाकी वजह से ठाकुर जी स्वयं बंध जाए हैं। ठाकुर जी पुष्टि प्रभु हैं। यासु कह रहे हैं कि अंगीकारेण सर्वम स्वतः एव करिष्यति इति विश्वासो यतस तस्यावश्यक, यानी ये विश्वास आवश्यक है कि अंगीकार के द्वारा ही सर्व सब कुछ स्वतः भगवान करेंगे। भगवतोपि तथा नियम, भगवान को तो वैसो नियम है ही। कदाचित परीक्षार्थम प्रारब्ध भोगार्थम वा प्रभुश्चेद विलंबते तदापि न कार्य इत्याहु कदापि ति पदेन, यानी कदाचित कभी ऐसा हो सके कि परीक्षा के लिए ठाकुर जी अपनी परीक्षा के लिए अथवा तो अपनो प्रारब्ध को भोग कछु बाकी रह गयो है, वा के लिए भगवान विलंब करें फल देवे में, वो भी नहीं करनो, तदापि न कार्य, तब भी चिंता नहीं करनी। कदापि ये शब्द सु यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि गोसाई जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो निवेदितात्म भी कदापि इति शब्द जो दियो है, वो कदापि शब्द को यासु दियो है कि कोई वक्त समझो ठाकुर जी परीक्षा के लिए अथवा प्रारब्ध भोग के लिए या तो अपनी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, यासु विलंब कर सके हैं ठाकुर जी, अथवा तो अपने कोई प्रारब्ध के भोग भोगने रह गए हैं, वह कारण सु यदि प्रभु विलंब करें फल दान करवे में, तब भी चिंता नहीं करनी है। तदापि न कार्य इत्याहु कदापि ति पदेन। अब यहाँ पे विलंबते इति, यहाँ पे जो विलंबते शब्द दियो है गुसाई जी ने, वाकु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं गोकुलनाथ जी। आप मेरे ये कर्सर को बराबर देखते जाइयो, मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है तो आप लोगों को मालूम पड़ेगी कि कहाँ मैं हूं और कहाँ देखना है। तो यहाँ पे जो विलंबते शब्द दियो है श्री गोसाई जी ने, वाकु बता रहे हैं औदासीन्ये तत्कृतो यत्नः कदाचित् न सिद्ध्यति चेत तथा अपि अग्रिम यत्ने आस्था न कार्या इत्यर्थ। औदासीन्ये तत्कृतो यत्नः कदाचित् न सिद्ध्यति, अगर उदासीनता होवे के कारण, जैसे वो प्रश्न आयो ना कि भाई अपन अगर मन लगा के कोई कार्य नहीं करेंगे तो वो सफल कैसे होगा, तो औदासीन्य तत्कृतो यत्न कदाचित न सिद्ध्यति, अगर आपने मन लगा के वो कार्य नहीं किए हुए, उदासीनता से किए हुए, तो उनके ऐसे के द्वारा किए गए यत्न शायद न सिद्ध होए, तो भी अग्रिम यत्न में आस्था नहीं करनी, अगले और भी यत्न में आस्था नहीं करने की। भाई अपन ने पिछली बार कियो तो उदासीनता से कियो तो, मन लगा के नहीं कियो तो वो कार्य, अब की बार अपन मन लगा के करें, ये सोच के अपन आगे कोई यत्न करेंगे तो वो भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि शायद प्रभु परीक्षा के लिए देर कर रहे हैं फल देवे में, या अपना कोई प्रारब्ध को भोग रह गयो है, यासु देर कर रहे हैं। ये दो कारण हैं जिनके कारण अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं। यासु चिंता न करके प्रयत्न करनो, पर ये चिंता नहीं करनी कि अरे अपनो कछु प्रयत्न रह गयो है, अपने में कछु कमी हती,
या अपन ने कहीं कोई कुछ अपने से छूट गयो ये सोच के नहीं करना, पर ठाकुर जी चाह रहे हैं, इच्छा है ठाकुर जी की कि अपन और प्रयत्न करें, ये सोच के अपने प्रयत्न करें। तो चेत तथा अग्रिम यत्न आस्था न करे, तो अग्रिम यत्न में आस्था नहीं रखनी है, आस्था तो रखनी है पर वहां यत्न में नहीं, परंतु ठाकुर जी के सामर्थ्य में आस्था रखते हुए वो कार्य को करना है। आप ये बात की बारीकी को समझो कि यत्न में आस्था नहीं रखे को मतलब ये नहीं है कि यत्न ही मत करो। आप ये गलती मत करिए कि वहां पे ठाकुर गोसाई जी या महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि यत्न ही मत करो। अग्रिम यत्न आस्था न कार्य इत्यर्थ, या को अर्थ समझो कि वह यत्न में आस्था रखते हुए यत्न मत करो, पर ठाकुर जी के सामर्थ्य में आस्था रखते हुए यत्न करो। यत्न तो तब भी करना ही है, क्योंकि यत्न नहीं करोगे तो पदार्थ लाओगे कैसे, जैसे यत्न तो करना ही है। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि प्रारब्ध भोग के लिए अथवा तो परीक्षा के लिए देर हो सके है, तो भी यत्न में आस्था न रखते हुए ठाकुर जी के सामर्थ्य पे आस्था रखते हुए वो कार्य को करते जाओ, चिंता मत करो। ननु, अब यहाँ प्रश्न उठायो, शंका उठाई कि ननु लोकवत कुटुंबाद्यासक्त्या स्वस्यापि लौकिकी गतिम कदाचित प्रभु कुर्यात्। अब प्रश्न ये आयो, मन में चिंता ये आई कि जैसे साधारण जीव जो हैं, प्रवाही जीव, वो अपने कुटुंब में आसक्त हुए हैं, अपने परिवार में आसक्त हुए हैं, ऐसे स्वस्यापि लौकिकीम गतिम कदाचित प्रभु कुर्यात्, तो वैसे ही हमको भी आसक्ति हो जाएगी अपने कुटुंब आदि में, तो अपनी कहीं लौकिक गति भगवान नहीं कर दें कि अरे ये तो लौकिक जीव है, या तुम लौकिक के जैसे ही करो, क्योंकि आपको कुटुंब आदि में आसक्ति है, तो या की भी लौकिक गति कर दो, ये सोच के चिंता मत करो कि अरे हमारी लौकिक गति हो जाएगी। ननु लोकवत इति, यहाँ पे देखो ये ननु लोकवत जो गोसाई जी ने शंका उठाई वाकु यहाँ पे और स्पष्ट कर रहे हैं। ननु लोकवत इति के बाद में गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि लोकस्यैव कुटुंबासक्त्या भगवद अंगीकारस्य असिद्धत्वेन लोकस्यैव स्वस्यापि लौकिकीं लोकसदृशीं गतिम आस्थापूर्वकं विचारे यत्न करणे एव तत्फल सिद्धि अन्यथा न इति रूपा नीति शास्त्रानुरोधेन। कुर्यादित्यर्थ, यानी चिंता अब यूं हो जाए समझो कि अरे अपनी तो लौकिक में आसक्ति है, जैसे अन्य साधारण जीवन को हो गया है वैसी हमारी भी लोक में आसक्ति हो गई है, तो कुटुंब में आसक्ति हो गई है, तो लोग साधारण जीवन के जैसे हमारी भी लोक सदृशी गति कहीं ठाकुर जी न कर दें। आस्था लौकिकीं लोक सदृशीं गतिम आस्था पूर्वकम तत्फल सिद्धि अन्यथा न इति रूपा नीति शास्त्रानुरोधेन कुर्यात्, मतलब ऐसी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए। ये नीति शास्त्र है ना कि जैसे लोक में लोगन को आसक्ति होवे है तो उनकी लौकिक गति होवे है, तो हमारे भी भगवान हमारे कुटुंब में आसक्ति हो गई, हम ये सब प्रयत्न करवे में और ये सब में लग गए, तो या मतलब देखवे में ऐसा लग रहा है कि हम भी कुटुंब में आ सकते, हम भी साधारण जीवन के जैसे ही हैं। तो ऐसे ही दिखते हुए ठाकुर जी कहीं यूं नहीं सोच रहे हैं कि अरे इनको भी लौकिक गति कर दो, तो ऐसी चिंता नहीं करनी इत्यर्थ। वैसी भी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तत्राहु भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकींच गतिम। भगवान अपि, भगवान भी पुष्टि में स्थित हैं, जैसु लौकिक गति नहीं करेंगे, ये बात को विश्वास होना चाहिए। यतः पुष्टिस्थो अतो मर्यादा मार्गीय वैराग्याद्य भावेपि महापुरुषेण निवेदिता।
इति स्वकीयत्वेन अंगीकारात् तथा न करिष्यति इत्यर्थः। भगवान वैसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्वकीयत्वेन अंगीकार, महापुरुषेण निवेदिता, कौन के द्वारा निवेदन हुआ है? तुमने स्वयं आके निवेदन कियो अपने मनसू? नहीं, तुम आचार्य चरण के शरण में गए और उनके द्वारा तुम निवेदित हुए हो। यासु भले तुम्हारे अंदर मर्यादा मार्ग में जैसी आवश्यकता है वैसी वैराग्य आदि को अभाव दिखाई दे रहा हो, तो भी तुम क्योंकि महापुरुष के द्वारा निवेदित हो तो स्वकीय के रूप में अंगीकार कियो भय है यासु भगवान तुम्हारी लौकिक गति नहीं करेंगे। अब ये बात को अपन और भी स्पष्टता से अगले सप्ताह समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सो विवेचन की, विश्लेषण की आवश्यकता है, पर अपने पास अब समय बहुत कम हो गया, आज का समय पूरा हो गया है। इसको अपन या नोट पे छोड़ रहे हैं कि महापुरुष के द्वारा अंगीकृत होवे के कारण, उनके द्वारा निवेदित भयो होवे के कारण भगवान लौकिक गति नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन आज रखें। तो आप लोगों को अब कुछ प्रश्न हो तो वो आप लोग कर लो, नहीं तो फिर अपन आश्रय को बदले के अपन आज को यहाँ समापन करें। यदि कोई को कुछ प्रश्न है तो आप लोग हाथ रेज करियो। हाँ निहार भाई, पूछो निहार भाई। जय जय, आपना चरणों कोटानु कोटि साष्टांग दंड प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। हाँ जय जय, धर्म अर्थ काम અને ઠાકોરજીનું સેવા સ્મરણ માં બેલેન્સ કેવી રીતે કરવાનું? તો અથવા તો એ બેલેન્સ પણ ઠાકોરજી પર છોડી દેવાનું છે કે ચલો ભાઈ કેટલું કમાવું એમ? હા, એ માટે તો જો તમારે કેટલું કમાવું તો એ તમે એક ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી શકો છો કે જેટલું તમે જે સમય સેવામાં આપી રહ્યા છો એમાં કપાત આવવા માંડે એટલું તમારે કમાવાને માટે જવું પડે તો પછી તમારે સમજવું કે ઇટ ઇઝ નાઉ ઈટિંગ ઇનટુ માય સેવા ટાઈમ. જી જી, માય અટેન્શન, તમારું અટેન્શન એમાંથી પણ એટલું પણ હટી રહ્યું છે. એટલે ક્યાંક તો આપણે બ્રેક કરવું પડે, ક્યાંક તો આપણે લાઈન ડ્રો કરવી પડે, કારણ કે બાકી બિઝનેસમાં કહો કે નોકરીમાં કહો કે ગમે તેમાં કહો, એમાં કોઈ એન્ડ નથી. કેટલું કમાવું એનું કોઈ એન્ડ નથી હોતું. ભલે અંબાણી જેવો પણ હોય તો એને પણ હજી મારે વધારે કમાવું છે, એની ઈચ્છા તો ત્યાં પણ થાય જ છે, નહીં તો એ કરત જ નહીં ને આગળ. પણ એ પણ કરે છે, એટલા એનો મતલબ એમ થયો કે તરક્કીની કોઈ સીમા હોતી નથી. એને તો સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. પણ તમારે પોતે નક્કી કરવાનું છે કે મારે લિમિટ ક્યાં છે, અને એ લિમિટ નક્કી કરવાનું બહુ ઈઝી છે કે તમે જેટલું સમય ઠાકોરજીને આપી રહ્યા છો સેવામાં કે સ્મરણમાં, એ સમય જો તમારો કપાવા લાગે તો સમજો કે નાવ હવે વધારે થઈ ગયું. એટલે એ કોઈ તમને આવીને બતાવશે નહીં, એ તમારે પોતે નક્કી કરવું છે કે આ મારા માટે લિમિટ છે. જી જી જી, દંડ પ્રણામ જી. સેટ યોર ઓન લિમિટ. હા આશીર્વાદ. हाँ उमंग भाई बोलो. જે ઓડિબલ છો? હા, જે મારો પ્રશ્ન એ હતો, જેમ આપણે લૌકિક ધર્મ અર્થ માટે જ્યારે ચિંતા હોય તો આપણે આપણી લિમિટ સેટ કરવી જોઈએ. તો એવી જ રીતે જેમ કે અલૌકિકમાં આપણને ઈચ્છા થાય ઠાકોરજી માટે, અને જ્યારે આપણે એ વસ્તુઓમાં અગ્રસર, અને ઘણીવાર પછી એવું થાય કે હવે આમાં શું થશે, યા હવે આપણે આનાથી આગળ કેવી રીતે વધી શકશું, યા અગર આપણાથી ન થઈ શક્યું તો અગર આવી ઠાકોરજી વિશે અગર ચિંતાઓ થાય તો એમાં શું કરવું જોઈએ? એમાં પણ ના જ પાડી છે ને કે એ ચિંતા પણ આપણે નથી જ કરવાની. જેટલી આપણાથી
આપણું ઠાકોરજી લેવા ઈચ્છે છે એટલી સ્વીકારે છે, અને એમાંય સમજો કંઈક પ્રતિબંધ આવી રહ્યું છે કે તો જી જી એકાદ વખત પ્રયત્ન કરી જવાનું, ન થતું હોય તો પણ ચિંતા છોડીને કે ભાઈ આટલું જ કરવાનું, ઠાકોર મારો આટલો જ અધિકાર છે એમ માનીને પછી ત્યાં એ પ્રયત્નને બંધ કરવું. કારણ કે જો ઉદ્વેગ થવા લાગે જેમાં પણ, જી 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 દેવાર્થ પણ તમને જો ન થઈ જી શક્યું હોય અને તમે ઉદ્વેગ કરવા માંડો તો એ ઉદ્વેગ પણ ઠાકોરજીને નથી ગમતું. ઠાકોરજીને ઉદ્વેગ સાથે બરોબર સેવા બરોબર નથી જોઈતી. એટલે જેટલી પણ તમે સેવા બરોબર એ પ્રેમ સહિત કરો, વિધાઉટ એની ઉદ્વેગ, એ જ ઠાકોરજી સ્વીકારે છે. બરોબર છે સર. એટલે ત્યાં પણ બરોબર છે એ રીતે કરવાનું છે. ધન્યવાદ છે. हाँ, ओके। और कोई? विपुल भाई, अभी तक सब क्लियर है? હા જી એકદમ બહુ સરસ રીતે. હા ના બિલકુલ એકદમ આજે પાછું તમે સેવાવલોકન કરાયું ને પાછા મુદ્દા જે પણ હતા હા, બહુ એકદમ સરસ રીતે બેસી ગયું પાછું. સરસ સરસ. હવે ને કઈ થઈ ગયું હોય હા તો જરૂર પૂછજો. બિલકુલ. ને હમણાં એટલે આનો અર્થ તો અત્યાર સુધી શીખાય છે કે પ્રભુની જે ઈચ્છા છે એને આધીન થઈને રહેવાનું, કે જે ઠાકોરજી આપણા પ્રારબ્ધમાં નસીબમાં કે જે પણ સેવાના નિમિત્તે હોય, આ અર્થ કામ એના માટે પણ ઠાકોરજીએ નિર્ધાર કર્યો છે હમ, એના ઉપર જ આપણે ડિપેન્ડ રહેવાનું, કે એ જ આપણા જે એમને જે સારું લાગશે એ જ આપણા માટે કરશે એમ. બરાબર છે. હા જી. बहुत सरस। तो પછી આજે આપણે अपन यहाँ पे रखें, आश्रय को पद लें, फिर अपन अगले शनिवार को पुनः इकट्ठे होंगे। तो आश्रय को पद अपन लेना। दृढ़ चरणान केरो भरोसो, दृढ़ चरणान केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणान केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधिरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणान केरो। तो अब अपन अगले शनिवार को पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए विजय तेज।